गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर सिक्स स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश का लेसन। इधर हमने अभी 1.4 पढ़ा था, वो एक पोएम था, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ये फिफ्थ लेसन है या कबड्डी मैच। इट्स लाइक अ रिपोर्ट राइटिंग। आपको अभी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा झलक दिखा रहे हैं कि होता कैसा है रिपोर्ट राइटिंग। इधर एक स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल के उस स्कूल में जो कबड्डी मैच होने वाला है उसके रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देती है। देखते हैं अ कबड्डी मैच। The school sports met was scheduled next month. The practice matches had already begun. Ninth B were the favourites as they had strong players in their team. The Kabaddi trials were on. This year there were three new students in class ninth A. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. Ninth A's hopes soared. When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. Ninth they won the toss and sent their raider Govind. He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suresh from ninth B and was already heading home. A point was scored. Ravi from ninth B was a very strong player. He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly in between his legs, twisted like scissors, that releasing oneself from his grip was next to impossible. All the players were literally afraid of him. This eighth player had won many matches for ninth B. With the support of Mohan and Vinod, ninth B were unbeatable. Mangesh from ninth A was also strong. He was a good match for Ravi. Ravi was relaxed as he had never dreamt of any strong opposition from any team. When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that ninth A would lose Mangesh, but Mangesh proved his mettle. He was on the ground with the anti-raiders, catching hold of his waist and legs. Slowly he inched towards his coat. The all the anti-raiders, with all their mighty, were trying their best to pull him back, but with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the midline. There were cheers in the ground. He had not only saved himself but also was able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan, and Jinkya, who were holding him, were also declared out. Now ninth they began to play cautiously. Mihir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in ninth A. Nothing much happened in the next four raids. Now it was Vivek's raid. He always played with strategies and they worked fine. The remaining three players from ninth B trapped Vivek. He slowly moved back into towards his court. The three anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raider still hanging on his arm. Oh, the whole of 9B was declared out. 9A had actually managed to get three more bonus points of Lona. It was an icing on the cake. What an enviable score! It set the heads of 9B reeling. After the halftime break, the Stars players of ninth A were full of confidence. Once again, they managed to catch hold of the ace players, Raiders Mohan, Ajinkya, and Ravi. Ninth A outplayed ninth B in all the areas of Kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B, who had never tasted defeat earlier. सो अभी इतना पढ़ लेते। लेसन थोड़ा लेंदी है बट ओके। ये लास्ट पेज है जो वो कबड्डी के बारे में है। हाउ कबड्डी इज़ हाउ इट इज़ प्लेड। बट अभी इधर देख लेते हैं हम लोग ने जो भी मैच अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो ये मैच इधर नोटिस किया है। तो सबसे पहले इधर टू टीम्स रहते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स शेड्यूल होता है नेक्स्ट मंथ, उसकी प्रैक्टिस अभी से ही चालू हो गए रहते हैं। नाइन्थ बी सबका फेवरेट था क्लास कबड्डी टीम नाइन्थ बी की, क्योंकि वो सब उस टीम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। कबड्डी ट्रायल्स चालू हो गए थे सब प्रैक्टिस के लिए। ओके, एक महीने पहले से ही। और सबको चौंकाने वाली एक ऐसी थी कि नाइन्थ ए के भी जो स्टूडेंट्स थे वो आउटस्टैंडिंग प्ले कर रहे थे ट्रायल में। ठीक है, नाइन्थ बी तो सबका फेवरेट था ही क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, लेकिन सबको चौंकाने वाली बात ऐसा थी कि नाइन्थ ए भी प्रूव कर देता है कि उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं।
मैच स्टार्ट होता है, सारे जो भी देखने वाले लोग रहते हैं, स्पेक्टेटर्स रहते हैं, स्पेक्टेटर्स मतलब ऑडियंस रहती है जो मैच को देख रही है, वो सब क्लैप करते हैं जैसे स्टार्ट होता है, सबको बूस्ट करते हैं, चीयर करते हैं उनके फेवरेट टीम एंड प्लेयर के लिए। नाइन्थ टीम जीत जाती है टॉस और वो अपने रेडर को भेजती है सामने वाले उसमें रेड करने के लिए, गोविंद को भेजती है। वो बहुत ही क्विक, स्विफ्ट मतलब बहुत ही क्विक रहता है वो, और बिना सामने वाले को पता चले कि वो टच कर चुका है सुरेश को नाइन्थ बी के, वो वापस आ जाता है अपने टीम में और फिर एक पॉइंट उनको मिल जाता है नाइन्थ ए को। ठीक है, रेडर्स मतलब जो टच करके वापस आ रहे रहते हैं, एंटी रेडर्स मतलब जो रेड नहीं कराना चाहते और वो उसको पकड़ते हैं इंस्टेड। ठीक है, रवि फ्रॉम नाइन्थ बी, वो भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था रवि, वो अकेला ही काफ़ी था प्लेयर्स को पकड़ने के लिए, अपने होल्ड में, अपने हैंड्स में सिजर के जैसा उसको पकड़ लेता था कोई भी प्लेयर को। तो एक नाइन्थ बी के पास एक एडवांटेज था कि रवि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ऑल द प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स डरते थे नाइन्थ ए के, नाइन्थ बी के रवि से। ठीक है, क्योंकि रवि ने अपने क्लास के लिए, नाइन्थ बी के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत बार मैचेस जिताए हैं उनके, उसके ये स्ट्रैटेजी से पकड़, ऐसा एकदम टाइटली पकड़ने का। ठीक है, उसका उन लोग का एक एडवांटेज था। और फिर रवि तो था ही नाइन्थ बी में, उसके साथ ही साथ दो और सपोर्ट सिस्टम थे, मोहन और विनोद, इसीलिए नाइन्थ बी एकदम आउटस्टैंडिंग और अनबीटेबल टीम था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सबसे लव्ड था। अभी नाइन्थ ए की बात कर ले, नाइन्थ ए बी में भी स्ट्रॉन्ग थे मंगेश, जो मैच दे सकता था, जो यू नो कर सकता था कम्पीट रवि से। ही वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज रवि। रवि रिलैक्स करता है, रवि को पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैच है मंगेश के लिए, इसलिए वो ज़्यादा हाइपर नहीं होता देख के, और वो जाता है अभी रेड करने को। मंगेश रवि को रेसल डाउन कर लेता है, मतलब उसके जाल से वो फंस के निकल के बाहर आ जाता है, जिसे रवि बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ता है, लेकिन मंगेश उसको फाइट बैक करके वो अपने घर आ जाता है। और ऐसे ही इसीलिए नाइन्थ ए के पास मंगेश था, जो वो नहीं खो सकते थे। ही वॉज अ जेम मंगेश अपने क्लास के लिए, अपनी टीम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो मैच दे सकता था रवि को, और मंगेश ने ऐसा प्रूव किया। वो ग्राउंड पे था, एंटी रेडर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे इधर, लेकिन वो टच कर लेता है। ठीक है, स्लोली इंच्ड उसका हाथ पहुंच गया। सारे जो एंटी रेडर्स थे नाइन्थ बी के, वो सब बहुत ही हार्ड ट्राई की उसको पीछे पुल करने की, लेकिन ग्रेट डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल के साथ अपना सांस सांस ना भूल के वो टच कर लेता है सक्सेसफुली वो लाइन को, और वो स्कोर कर लेता है। और चीयर्स सुनाई देती है नाइन्थ ए के लिए, क्योंकि मंगेश ने विन कर लिया है। ठीक है, उसने रेड करके आ गया है वो वापस। ही हैड नॉट सेव्ड हिमसेल्फ, वो खुद को ही नहीं बचाते लेकिन उसकी टीम को वो बचा लेते हैं, क्योंकि इस रेड से उसने 3 पॉइंट स्कोर कर किए रहते हैं अपनी टीम के लिए। अब रवि ही नहीं था नाइन्थ ए में, उसके साथ मोहन और अजिंक्य भी थे, जो रवि अकेला नहीं था जो आउट हो गया था, मोहन और अजिंक्य ये सब भी डिक्लेयर हो गए थे आउट। ठीक है, अब इधर नाइन्थ ए ने भी बता दिया कि वो स्ट्रॉन्ग मैच है नाइन्थ बी के लिए। नाइन्थ बी खेलती रही एकदम ध्यान लगा के। मिहिर नाइन्थ बी का जो था, उसने मैनेज कर लिया सोहन को आउट करने के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बाकी रेड्स में। अभी विवेक का टर्न था, वो भी स्ट्रैटेजिकली खेलता है और उसके स्ट्रैटेजीज काम करते हैं। नाइन्थ बी के जो प्लेयर रहते हैं वो नाइन्थ ए के विवेक को ट्रैप कर लेते हैं। वो ट्राई करता है कोर्ट के पास जाने को, वो लाइन पे टच करने के लिए, लेकिन फिर एंटी रीडर्स भी उसको इतना ज़ोर से पकड़ते हैं कि वो भी उनके साथ आगे बढ़ रहे रहते हैं। तो नाइन्थ भी उसे जकड़ के पकड़ी रहती है, लेकिन क्या होता है, विवेक अपना पूरा जान लगा के वो कैसे तो कैसे अपना पैर और हाथ आगे बढ़ा के वो कोर्ट मिड लाइन पे टच कर लेता है। और क्या देखते हैं कि ब्रेक के पहले पूरी नाइन्थ बी की टीम आउट हो चुकी है, क्योंकि वो होल्ड कर रहे थे ना, वो पकड़ रहे थे, वो क्या बोलते हैं, वो
विवेक को वो कर रहे थे कि वो ना जा पाए, विवेक को बहुत पकड़े थे, बट स्टिल वो उन लोग आउट हो जाते क्योंकि उसने मिड लाइन टच कर लिया रहता है। हाफ, फिर इधर ब्रेक हो जाता है, हाफ टाइम ऑलरेडी ओवर है। नाइन्थ ए डेफिनेटली आई थिंक इधर अभी लीड कर रही है क्योंकि उनके सामने वाली तो टीम पूरी आउट हो गई है। हाफ ब्रेक के बाद पूरी जो नाइन्थ ए की थी वो सब कॉन्फिडेंस में आ गए थे और फिर से एक बार वो लोग जो रहते हैं नाइन्थ ए के, उन लोग मोहन, अजिंक्य और रवि को आउट कर देते हैं। जो सब नाइन्थ बी को इतना प्रेस कर रहे थे, उनके साइड में थे, अभी इधर गेम टेबल चेंज हो गया है। नाइन्थ ए इज़ द वन लीडिंग, जो भी फुल कॉन्फिडेंस से थी। और फिर से ब्रेक के बाद उन लोगों ने मोहन, अजिंक्य और रवि, द 8 प्लेयर्स ऑफ द नाइन्थ बी ऑफ द अपोजिशन टीम, उन लोग को फिर से आउट कर लेते हैं। नाइन्थ ए आउट प्ले कर चुकी थी नाइन्थ बी को, ठीक है। उनकी टीम की जो स्पिरिट थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी वो सब काम आ रही थी। और ऐसा डिफीट, ऐसा हार नाइन्थ बी ने कभी नहीं किया था। जैसे बोला था सब नाइन्थ बी के साइड थी क्योंकि नाइन्थ बी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स था, लेकिन जो ये न्यू स्टूडेंट्स आए थे नाइन्थ ए में, वो प्रूव करते हैं कि बार बार एक ही जन नहीं जीत सकते। आपके में कॉन्फिडेंस है, विल है, तो आप जीतोगे। ऐसे ही वो मैच ख़त्म होता है। नेक्स्ट इधर देखते हैं। कबड्डी इज़ एन एंशिएंट स्पोर्ट. इट इज़ originated in India and has now become popular in many countries, so that many international events are organized in these events. International rules are followed by several other kabaddi styles such as Sanjeevani, Gamimi, Amar, etc. are followed in different parts of India. In Kabaddi, two teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a midline. The game is usually played in two halves within a half-time break in between. After the break, the teams exchange their sides in the court. To play the game, each team sends raiders across the midline to the other team. The raiders try to tag the opponent and run back to his side, all in one breath. Show that he doesn't inhale again. He has to chant kabaddi, kabaddi, kabaddi all the time. He has to touch inhale again if he's out. The opponents try to catch the raider and stop him going back to his half till he loses his breath and has to inhale again. If the raiders manage to go back successfully, all the person he managed to has tagged, all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team scores a point. If all 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus point or Luna. The team with the maximum points win the match. The game of Kabaddi requires good health, muscular strength, strategic skills, a lot of practice, and above all, great determination. जैसा मैंने बोला, determination is the key to success. Indian girls and boys have always excelled at Kabaddi. Would you like to know an 8-player Kabaddi player when you are a little older? Would you like to be an kabaddi player when you are older? Who knows if you can make a resolve now? One day you may help win glory to your school, district or even state and the country. इधर भी कबड्डी के बारे में बताया। 2 टीम्स होते हैं 7-7 के। ये इंडिया में एंशियंट टाइम से खेला जा रहा है। वो दोनों एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में रहते हैं। फिर कोई एक टीम स्टार्ट करती है, मिड लाइन होता है, वो सामने वाले टीम को टैग करती है, उनको एक ही सांस में पकड़ के वापस जाना रहता है घर पे, कबड्डी 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 बोल के, ताकि उनका एक ही सांस में वो सबको टच करके वापस जा रहे हैं, ऐसा वो मेक श्योर करते हैं, इसलिए कबड्डी कबड्डी बोला जाता है। और फिर टैग मतलब टच किया, जो रेडर है वो टच करता है तो वो टैग होता है, ठीक है, उसको आउट करता है, टच करता है, टैग। एंटी रेडर्स जो उसे डिफेंड करते हैं और वो ना जा पाए। इधर देखो, वो ये इसको टैग कर दिया और ये एंटी रेडर्स है, ये रेडर्स है, ये उनको पकड़ के टैग करके अभी वो मिड लाइन के पास जा रहा है ताकि वो सब आउट हो जाए जिनको भी उसने टैग किया है, ठीक है। सिंपल, ये इधर ही ख़त्म होता है। थोड़ा बड़ा था, आई होप आप लोग को ईजीली अंडरस्टैंड हो गया। ईजी है। पहले तो स्पोर्ट्स के बारे में बताया इधर, उसके बाद बताया है कबड्डी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी से मैं लाऊंगी, रीडिंग करो और स्टे सेफ। बाय बाय।